So, hello students, we are back again with a chapter in history, the age of industrialization. So, what had we seen so far in this chapter? We had seen the dawn of the century. It was a magazine or a musical magazine where March and Two Steps mentioned about the dawn of the century, a peaceful world, a world after the two great wars, the two great world wars. And in that, the publisher E.T. Paul, how he described the dawn of the new century, that is a time, an era where peace and prosperity dwell. We had also uh, discussed about the two magicians, in which one of them was portrayed as Aladdin with his mystical chirag, the lamp of magic, where he creates a beautiful palace which was depicting the east and the past. And in the same picture below, we see a engineer, or we can see a mechanic, who is uh, making a new world with his wonderful gadgets, wonderful inventions of steam engine, of bridges and buildings, and so many other things. Then we had read about the spinning in the 18th century, where we saw a member of the family which was involved in production of a yarn, how they used to produce yarn, how the industrialization, the era before industrialization, as we had called it as the proto-industrialization, where uh, things were being made in villages and then it was brought to London. London was at that time known as the finishing center. And then we are coming up to where we had left. We'll start from the coming up of the factory, how the factories began to dominate the 1730s, and more than 1730s, it was in the early 1800s. So the first symbol of industrialization was more of a cotton mill. We will discuss this in detail now. The earliest factories in England came up by the 1730s, but it was only in the late 18th century that the number of factories multiplied. So it took some time for the factories to multiply. It was still in the एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस. तो हम क्या देखते हैं कि जो पहला जो फैक्ट्री बना था वो 1730 में बना था, और वो खास करके वो कॉटन मिल था. और इसके बाद में धीरे धीरे करके और भी इंडस्ट्रीज़ बनते गए. ये 18th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी में तब जाके पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ. द फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू ईरा वॉज कॉटन. तो कॉटन एक ऐसा आविष्कार था, कॉटन उस ज़माने का एक कॉटन क्लॉथ ऐसा आविष्कार था. लोग कॉटन पहनने को तरस जाते थे. खास करके जो इंडिया से जो कॉटन आया करता था, इंडिया से कॉटन टेक्सटाइल जो आया करता था, वो बहुत डिमांड में था. जब स्पिनिंग जेनी इंट्रोड्यूस्ड हुई, जब ये फैक्ट्रीज़ बने, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया गया कि कॉटन से कपड़ा बनाने का, और इस कपड़े का मार्केट बहुत जल्दी कॉटन मार्केट ने कैप्चर कर लिया. इन 1760 Britain was importing 2.5 million pounds of raw cotton to feed its cotton industry. By 1787, this import soared to 22 million pounds. This increased was linked to a number of changes within the process of production. Let us look briefly at some of these. तो शुरुआत में जब 1760 में, तो इंग्लैंड जो था, ब्रिटेन जो था, केवल 2.5 मिलियन पाउंड्स कॉटन अपनी इंडस्ट्रीज़ में फीड करता था. यानी इंडिया से या एशियन कंट्रीज से कॉटन लाकर इंग्लैंड में डंप करता था और यहाँ पर इसका कपड़ा बनाया जाता था. लेकिन
1787 आते आते 22 मिलियन पाउंड्स कॉटन ये इंग्लैंड अभी इंपोर्ट करने लगा। तो इतना इंक्रीज़ क्यों हुआ, इसके पीछे क्या था? इसके पीछे देखो कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ और कॉटन यहाँ पर ग्रेट डिमांड में था। अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन इन द 18th century increased the efficacy of each step of the production process. Carding, twisting, and spinning and rolling. They enhanced the output per work, enabling each worker to produce more, and they made possible the production of stronger threads and yarn. तो यहाँ पर जो नए नए आविष्कार हुए, नए नए मशीन्स बनाए गए जिससे कार्डिंग करने में और ट्विस्टिंग करने में, स्पिनिंग करने में, रोलिंग करने में काफ़ी आसानी हो जाया करती थी। तो ये एक्टिविटीज़ ईजी हो जाने की वजह से क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन था पर पर्सन, एक इंसान जितना प्रोड्यूस करता था उसका आउटपुट बढ़ने लगा, समय बचने लगा। इस प्रकार से और कॉटन यहाँ पर बुलाना पड़ रहा था। दे एनहांस द आउटपुट पर वर्कर, enabling each worker to produce more, and they made possible the production of stronger threads and yarn. Then Richard Arkwright created the cotton mill. So who was the first person to create the cotton mill? It was Richard Arkwright. Till this time, as you have seen, cloth production was spread all over the countryside and carried out within village household. तो रिचर्ड आर्कराइट ने सबसे पहला कॉटन मिल क्रिएट किया, जहाँ पर एक ही बिल्डिंग के नीचे, एक ही बिल्डिंग के अंदर सारा काम जो स्पिनिंग से लेकर, जिनिंग से लेकर, थ्रेशिंग, स्पिनिंग, जिनिंग, ये सब लेकर यहाँ पर हो जाया करता था, डाइंग से लेकर पूरा फिनिशिंग तक का। इससे पहले कैसा था, हर गांव में ये काम बटा हुआ था। Till this time, as you have seen, cloth production was spread all over the countryside and carried out within village households. But now, the costly new machines could be purchased, set up and maintained in the mill. क्योंकि अब इनके पास पैसा आने लगा, क्योंकि इन्होंने नए नए आविष्कार जो कर लिए थे, तो पैसा आने की वजह से क्या होगा कि उनकी हिम्मत बढ़ गई, बड़े बड़े मशीन्स बना दिए, बड़े बड़े मशीन इंस्टॉल कर लिए। अब मशीन आ गई तो एक जगह पर सारा काम होने लगा। विद इन द मिल ऑल द प्रोसेसेस वर बॉट टुगेदर अंडर वन रूफ एंड मैनेजमेंट। मिल के अंदर का फ़ायदा क्या है कि जो पूरा जो प्रोसेस था कपड़े बनाने का, वो एक ही छत के नीचे पूरा काम हो जाया करता था। दिस अलाउड अ मोर केयरफुल सुपरविजन over the production process, a watch over quality and the regulation of labor, all of which had been difficult to do when production was in the countryside. तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि एक ही बिल्डिंग के नीचे पूरा काम होना। एक तो अपने वर्कर्स, अपने जो कामगार है, क्या वो काम सही ढंग से कर रहे हैं, पूरा समय काम के लिए दे रहे हैं या बातें कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो इसके ऊपर एक सुपरविज़न हो जाया करता था, काम किस प्रकार का हो रहा है, अच्छे ढंग का हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहाँ पर कमी आ रही है, कहाँ पर सुधार किया जा सकता है, इस सब के ऊपर उनका सुपरविज़न हो सकता था, जो कि जब एक गांव में काम करते थे हम ऐसा नहीं कर सकते थे। इन द अर्लियर 19th century, factories increasingly became an intimate part of English landscape. So visible were the imposing new mills, so magical seemed to be the power of new technology that contemporaries were dazzled. They concentrated their attention on the mills, almost forgetting the by-lanes and the workshops where production still continued. तो जब ये इंडस्ट्रीज़ का आविष्कार हुआ, जब मिल्स बनने लगे, तो लोग इतना आकर्षित हो गए इसके तरफ,
जो कंटेम्प्रेरीज थे उस ज़माने के, जो बाकी जो बिज़नेस वाले जो थे, उनका इतना ध्यान आकर्षित कर लिया इस बिल्डिंग ने कि वह सब जो बाइलेंस थे, जो कंट्री साइड था, जो गांव में से जहाँ से वो काम करते थे, एक तरह से उनको टोटली वो भूल चुके थे। फिर हम क्या देखते हैं कि किस प्रकार से जो इंडस्ट्रियल पेस का जो चेंज हुआ, किस प्रकार से मैनचेस्टर शहर किस प्रकार से देखो पूरा इंडस्ट्री से भर गया। आप इस पिक्चर में, इस फ़ोटो में देख सकते हैं कि जो पूरा जो लैंडस्केप जो है, वहाँ पर केवल सामने में कुछ ही आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं और बैकग्राउंड में आपको बहुत सारे चिमनीज़, इंडस्ट्रीज़ के चिमनीज़ जहाँ से धुआं निकल रहा है वह दिखाई देता है। ओके, द मैनचेस्टर बाय एम जैक्सन, ये पेंटिंग जो है द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में 1857 में आई थी, जहाँ पर चिमनीज़ बिलोइंग स्मोक केम टू कैरेक्टराइज द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। तो कोई अगर पेंटिंग बनाता है तो उसके लिए मेन चीज़ क्या बनाएगा कि पीछे में जो चिमनी है, बड़े बड़े चिमनीज़ है, उसमें से धुआं निकलते हैं। तो ये बता रहा है कि किस प्रकार से उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन की हौड़ लग गई थी, दौड़ लग गई थी। हाउ रैपिड was the process of industrialization? Does industrialization mean only the growth of factory industries? First, the most dynamic industry in Britain were clearly cotton and metals. Growing at a rapid pace, cotton was the leading sector in the first phase of industrialization up to 1840s. तो सबसे पहले जो कॉटन इंडस्ट्रीज थी उसने रेस में सबसे आगे दौड़ लगा ली। कंपटीशन कॉटन इंडस्ट्रीज़ वर्सेस आयरन एंड स्टील या मेटल इंडस्ट्रीज़ के बीच में चल रहा था। तो 1840s तक का लीड कर रहा था इंडस्ट्रीज़ में कॉटन इंडस्ट्रीज़। आफ्टर दैट द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लेड द वे। विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज इन इंग्लैंड फ्रॉम 1840s and in the colonies from 1860s, the demand for iron and steel increased rapidly. By 1873, Britain was exporting iron and steel worth about 77 million pounds, double the value of its cotton export. फिर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ने ऐसा जोर पकड़ा कि उसने कॉटन इंडस्ट्री को बहुत पीछे छोड़ दिया। इसका कारण क्या था? रेलवे का आविष्कार। रेलवेज़ के लिए, रेलवे ट्रैक्स के लिए, रेलवे इंजन्स के लिए लोहे की ज़रूरत पड़ती थी। तो पहले तो रेलवेज़ इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया गया, फिर इंग्लैंड के जहाँ जो भी कॉलोनीज़ थे वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो इस प्रकार से 1840 से 1873 तक का आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ने कॉटन को मात दे दी। फिर आया इसका दूसरा दौर, उसका सेकेंड फेज़ था, क्या था? द न्यू इंडस्ट्रीज़ कुड नॉट ईजिली डिस्प्लेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़। इवन एट द एंड ऑफ द 19th century, less than 20% of the total workforce was employed in technologically advanced industrial sectors. Textile was a dynamic sector, but a large portion of the output was produced not within factories but outside, within domestic units. तो ऐसा था कि पूरा जो काम कॉटन का जो काम था, पूरा का पूरा काम जो था वो कॉटन के इंडस्ट्रीज़ में नहीं हुआ करता था, फैक्ट्रीज़ में नहीं हुआ करता था। लगभग 20% काम जो था, वर्कफोर्स जो था, वर्कर्स जो थे, ये टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंडस्ट्रीज़ में इन्वॉल्व थे। और इससे बड़ा पोर्शन जो था वो अभी भी गांव में बसा करता था, छोटे छोटे फैक्ट्रीज़ में, डोमेस्टिक यूनिट्स में बसे करते थे। तीसरा फैक्टर इसमें क्या था? तीसरा फैक्टर ये था, द पेस ऑफ चेंज इन द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ वॉज नॉट सेट बाय स्टीम पावर्ड कॉटन और मेटल इंडस्ट्रीज़, बट दे डिड नॉट रिमेन एंटायरली स्टैगनेंट ईदर। तो जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी वो उन्होंने कोई ऐसा स्टीम पावर्ड और कॉटन और मेटल इंडस्ट्रीज़ जो थे, ऐसा नहीं कि उनके पेस से ये आगे बढ़ने लगे, लेकिन
ऐसा भी नहीं कि वो एक प्रकार के स्टेगनेंट हो गए। जो तीसरे वाले की जो हम बात कर रहे हैं, द पेस ऑफ चेंज इन द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वॉज नॉट सेट बाय स्टीम पावर्ड कॉटन और स्टील इंडस्ट्रीज़। समझा इस बात को कि जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी ये स्टीम पावर्ड इंडस्ट्री से compete नहीं कर रहे थे, ये मेटल इंडस्ट्री से compete नहीं कर रहे थे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वह एक जगह स्थिर रह गए। Seemingly ordinary and small innovations were the basis of growth in many non-mechanized sectors such as food processing, building, pottery, glasswork, tanning, furniture making and production of implements। तो छोटे छोटे आविष्कार यहाँ पर भी होने लगे। इस छोटे छोटे आविष्कारों से भी इनका काम जो था, जो विलेज में काम कर रहे थे, इनका भी काम जो था वो तेज़ी से बढ़ने लगा। चौथी बात, फोर्थ, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अकर्ड स्लोली, दे डिड नॉट स्प्रेड ड्रामेटिकली अक्रॉस द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। न्यू टेक्नोलॉजी वॉज एक्सपेंसिव एंड मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर कॉशियस अबाउट यूजिंग इट। तो चौथी बात क्या थी कि जो टेक्निकल चेंजेस हैं बहुत ही ग्रेजुअली हुए, बहुत स्लोली हुए और एकदम अचानक से स्प्रेड नहीं हो गए कि पूरे इंडस्ट्रियल लैंडस्केप में अचानक से इंडस्ट्रीज़ आ गई और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए। जो नए नए टेक्नोलॉजी थे थोड़ा महंगे थे, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे थोड़ा संकोच करते थे कि क्या हम इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं, इसलिए थोड़ा समय लगा। द मशीन्स ऑफन ब्रोक डाउन एंड रिपेयर वॉज कॉस्टली। They were not as effective as the inventors and manufacturers claimed। तो ये मशीन जो थी अक्सर ख़राब पड़ जाती थी, इनको रिपेयर करने में बहुत समय लग जाता था। जिस प्रकार से जिन्होंने ये आविष्कार किया है, ये इन्वेंट किया है, मशीन इन्वेंट किया, उनके बड़े बड़े क्लेम्स होते थे कि ये ऐसा मशीन ऐसा है, वैसा है, इतना सारा काम करेगा, वैसा बिल्कुल नहीं था। कंसिडर द केस ऑफ द स्टीम इंजन। James Watt improved the steam engine produced by Newcomen and patented the new engine in 1781. His industrialist friend Matthew Boulton manufactured the new model, but for years he could find no buyers. At the beginning of the 19th century, there were no more than 321 steam engines all over England। सो स्टीम इंजन की बात अगर हम लेते हैं, जेम्स वॉट ने क्या किया, जो पहले जो स्टीम इंजन था न्यू कॉमन का, उसको उसने इम्प्रूव किया और इम्प्रूव करने के बाद में उसने अपने नाम पर उसको पेटेंट कर लिया, अपने राइट्स बना दिए। फिर उसका ही एक दोस्त था मैथ्यू बोल्टन ने उससे एक नया मॉडल इन्वेंट किया, लेकिन स्टीम इंजन में सुधार आने के बावजूद भी उस समय इंग्लैंड में केवल 321 स्टीम इंजन थे बस। ऑफ दीज 80 वेर इन कॉटन इंडस्ट्रीज, 9 इन वुल इंडस्ट्रीज एंड द रेस्ट इन माइनिंग, canal works and iron works. Steam engines were not used in any of the other industries till much later in the century। तो स्टीम इंजन्स केवल माइनिंग में थे, कॉटन थे और आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ में लगाए जाते थे। बाकी इंडस्ट्रीज़ में स्टीम पावर्ड इंजन्स यूज़ नहीं कर रहे थे। सो इवन द मोस्ट पावरफुल न्यू टेक्नोलॉजी दैट एनहांस्ड द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मैनी फोल्ड वॉज स्लो टू बी एक्सेप्टेड बाई इंडस्ट्रियलिस्ट। हिस्टोरियंस now have come to increasingly recognize that the typical worker in the mid-19th century was not a machine operator but the traditional craft person and laborer। तो अब लोगों को समझ में आ रहा है कि जो mid-19th century में हम जिस इंडस्ट्रीज़ के बारे में इतना बात कर रहे हैं कि यहाँ का जो मशीन ऑपरेटर वह सबसे अहम व्यक्ति नहीं था, बल्कि जो क्राफ्ट पर्सन थे, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन थे, ट्रेडिशनल लेबर्स थे, जो पुराने तरीके से काम करते थे, वही लेबर्स जो थे अभी भी इंडस्ट्रीज़ को जो रॉ मटेरियल्स थे वो सप्लाई कर रहे थे। यहाँ पर हम लेते एक छोटा सा ब्रेक और फिर इस ब्रेक के बाद में हम हैंड लेबर एंड स्टीम पावर के ऊपर में चर्चा करेंगे।